Students, this is the third and final lecture on of studies by Francis Bacon. So far we have read that he talks about three types, three purposes of study: delight, ornament and ability. Three kind of misuses or three kind of bad effects which they can give us, that if we study too much for retirement, then it is laziness, and if we use them for ornamentation, then it is a kind of whim, a kind of affectation. And if we make all the judgments on the basis of our studies, then it is a kind of whim of the scholar. Then we have three type of men: crafty men, simple men and wise men, and how they use the studies for their own use. Then again we have three type of books: some needs to be tested only, some needs to be swallowed, and some needs to be chewed and digested in a proper manner. Then we have three type of effect studies can give us: reading makes a full man, conference a ready man, and reading an exact man. Then we have the studied that learned that the different kind of effects different subjects have on our personality or on our character. Like histories makes men wise, poets witty, mathematics subtle, moral stories make man serious, logic and rhetoric make him able to discuss the things in more better manner, and philosophy makes a man deep and grave and thinking. Now let's finish it. Nay, there is no stone or impediment in the wit, but may be wrought out by fit studies. Like as disease of the body may have appropriate exercises. Now he says that there is no stone or impediment, there is no hindrance, there is no that kind of impediment, there is no hindrance, there is no breaker, speed breaker in way of our wit. हमारी जो विट है, हमारी जो बुद्धि है, उसके रास्ते में कोई ऐसी बाधा, कोई ऐसी दिक्कत, कोई ऐसी ट्रबल, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है which cannot be wrought out by fit studies. If we want to shape our wit, if we want to shape our personality, our character, then we need to choose the right kind of studies. This is what he wants to say, because earlier he has given the examples to us that histories make men wise. So if we want to grow our wisdom, we should read history. If we want to be witty, then we should read the poets. That is what he wants to say. He says, like as diseases of the body may have appropriate exercises, we have different exercises which are suitable to cure different डिजीजेस. अलग अलग डिजीजेस, अलग अलग बीमारी जो होती हैं, उनके लिए अलग अलग एक्सरसाइजेज हमें बताई जाती हैं, है ना, जैसे बाबा रामदेव बताते रहते हैं. सो डिफरेंट एक्सरसाइज आर देयर. लाइक ही गिव्स एग्जांपल, बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रेंज. बॉलिंग, अगर हम बॉलिंग एक गेम शायद अपने मूवीज में अगर देखा हो तो एक बड़ी सी बॉल होती है जिसके 3 छेद होते हैं. उन 3 छेद में अंगुली डाल के वो उसको ऐसे रोल कराते हैं. एक प्लेटफॉर्म होता है उस पर, और आगे बोटल्स रखी होती हैं 7-8. उन बोटल्स के जाके वो टकराता है, और वो कितनी गिरती हैं उस हिसाब से आपको मार्क्स जो हैं वो मिलते हैं. क्लब्स में और ऐसे जो रेस्टोरेंट्स में, वहाँ ये गेम मिलता है. जनरली हमारे पास मोबाइल में मिलता है. सो दैट बॉलिंग, ही सेज बॉलिंग इज गुड फॉर स्टोन एंड रेंस. अगर आपको स्टोन की प्रॉब्लम है ना, तो आपके लिए बॉलिंग गुड है. शूटिंग फॉर द लंग्स एंड ब्रेस्ट. शूटिंग, अगर आपको लंग्स में या चेस्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, देन शूटिंग इज गुड फॉर यू. जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टोमक. अगर आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी thing wrong with your stomach, then you should adopt gentle walking. Riding for the head and the like. And riding, horse riding is good for your head. अगर हमारे मानसिक कोई समस्या है, दिमाग की कोई प्रॉब्लम है, तो we should go for riding.
एंड द लाइक। और इसी तरह से, है ना, ये कह रहा है जिस तरह से ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो बीमारियां हैं, अलग अलग एक्सरसाइजेज से जिनका इलाज होता है, इन द सेम वे वी हैव डिफरेंट डिफरेंट exercises, different different subjects which can be studied for different different purposes of our mind. So if a man's wit be wandering, now वो बता रहा है कि कैसे हम यूज कर सकते हैं. So if a man's wit be wandering, let him study mathematics. अगर किसी दिमाग आदमी जो है उसकी विट वांडर कर रही है, यानी उसका ध्यान नहीं लग रहा है ना, उसका बार बार ध्यान भंग हो जाता है पढ़ाई से, स्टडी से, उसका ध्यान बार बार इधर उधर हो जाता है, देन लेट हिम स्टडी मैथमेटिक्स, तो उसे मैथमेटिक्स पढ़ने दीजिए. फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशंस इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन. क्योंकि अगर वो डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहा है, कैलकुलेशंस अगर वो कर रहा है, देन अगर क्या होगा, मान लो जैसे हम गणित का कोई फॉर्मूला लगा के, गणित का अगर हम कोई इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, क्या होगा अगर आप बीच में आपका ध्यान कहीं भटक गया तो you have to begin again. आपको फिर से दोबारा शुरू करना पड़ेगा. That is the problem with mathematics. So it is quite obvious that your wit will be concentrated. आपकी concentration जो है वो वहीं रहेगी. You cannot go here and there during the study of mathematics. So that's why he suggests that that man should be given to study mathematics. Again he says, if his wit be not apt to distinguish or find differences, अगर उसकी जो विट है, उसकी जो बुद्धिमत्ता है, it is not apt, it is not skilled, it is not good for distinguish or find differences. जैसे आपने देखा ना, किसी भी दो चीज़ों के बीच में अंतर को पहचानना या उसको आइडेंटिफाई करना और उसमें अंतर बता पाना अगर कोई आदमी नहीं कर पा रहा है, जैसे आपने देखा होगा एक जो बाल पत्रिकाएं आती हैं उनमें ऐसी पहेलियां आती थी कि इन दो फोटोज़ में 7 डिफरेंस ढूंढिए, 8 डिफरेंस ढूंढिए, 10 ढूंढिए, जो जितने ज़्यादा ढूंढ पाता वो ज़्यादा स्कोर कर पाता. तो अगर कोई आदमी ऐसा है कि जो डिफरेंसेस नहीं ढूंढ पा रहा है, अंतर नहीं कर पा रहा है चीज़ों में और उनको पहचान नहीं पा रहा, लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन. तो उसको स्कूल मैन पढ़ने दीजिए. फॉर दे आर साइमनी सेक्टर्स. साइमनी सेक्टर्स अगेन लैटिन एक्सप्रेशन है. इसका मतलब है कि हम क्या कह सकते हैं इसको हमारी अपनी भाषा में, कि हमारे यहाँ कहते हैं ना कि भाई बुजुर्गों के पास हमें बैठना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए. क्यों? क्योंकि उनके पास अथाह भंडार है, उनके पास खजाना है. तो दैट इज द सेम थिंग. स्टडी द स्कूलमैन. स्कूलमैन इज द स्कूल बुक्स ऑफ देयर, है ना. तो उनको पढ़िए. क्यों? क्योंकि वो उनमें हर चीज़ का बहुत खूब डिस्कशन है, हर चीज़ को अच्छे से डिटेल्स में समझाया गया. इसलिए लेट देम रीड द स्कूल मैन. इफ ही बी नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस. और अगर वो योग्य नहीं है किसमें, टू बीट ओवर मैटर्स एंड टू कॉल अप वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर, अगर उसको किसी एक चीज को प्रूव करने के लिए दूसरी चीज का एग्जाम्पल देना और फिर से वहीं घूम के उसी मैटर पे आ जाना, ये अगर उसे नहीं आता है, लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस. तो उसे लॉयर्स के केस पढ़ने चाहिए. हम देखते हैं ना लॉयर्स के केसेस आपने मूवीज में और इनमें देखे होंगे कि वो उस बात को कहीं किसी दूसरे एग्जाम्पल से जोड़ते हुए कहीं किसी और जगह घुमा के और फिर वापस वहीं ले आते हैं. सो वेरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड में हैव ए स्पेशल रिसिप्ट. सो इट सेज एवरी डिफेक्ट ऑफ माइंड, हमारे माइंड का प्रत्येक जो डिफेक्ट है, एवरी डिफेक्ट ऑफ आवर माइंड कैन बी क्योर्ड, मे हैव ए स्पेशल रिसिप्ट, मीन्स मे हैव ए स्पेशल रेसिपी, मे हैव ए स्पेशल ट्रीटमेंट. हमारे दिमाग का कोई भी जो प्रॉब्लम है, कोई भी जो इश्यू है, उसको हम किसी न किसी स्पेशल ट्रीटमेंट उसका हम अडॉप्ट कर सकते हैं थ्रू स्टडीज. सो in this essay, Bacon has told us many things, like how we can use the studies, what are the different misuses or bad effects of more than necessary studies. So we can say that in this essay, Bacon has given us a very detailed description of the various pros and cons of studies. Hope you have you will learn it. And again,
if you find any difficulty in understanding or in grasping the meaning of this essay, then let me know. You can send me text or you can ask me anything which you have problem. Thank you.